Hello dear students, once again I welcome you all to my class. Okay, before we get into today's class, let's discuss something that we have already studied in the previous classes. Okay, last class हमने पढ़ा था Coulombs law. Okay, Coulombs law क्या होता है? दो पॉइंट चार्ज के बीच जो इंटरेक्शन फोर्स होता है, जो इंटरेक्टिव फोर्स होता है, उसको हम Coulombs फोर्स कहते हैं. ओके उसके अलावा हमने पढ़ा था परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम क्या होता है, इसके लिए फॉर्मूला हमने डिराइव किया था. ठीक है, फ्री स्पेस में इसका परमिटिविटी कितना होता है और डिफरेंट मीडियम में परमिटिविटी कितना होता है और परमिटिविटी किस तरह कूलम्ब्स फोर्स को इफेक्ट करता है, ये सब हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था. इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ और ये किस तरह अप्लाई होता है फॉर ए सिस्टम ऑफ चार्जेस. ओके, generally in day-to-day life we approach bodies which have a lot of charges. all right, generally हम day-to-day life में बहुत सारा चार्ज को एनकाउंटर करते हैं. पॉइंट चार्ज इट्स जस्ट एन आइडियल केस. ठीक है, जो हमारा कंडक्टर होता है, जो अभी हमारा इलेक्ट्रिकल गैजेट्स होते हैं, उसमें बहुत सारा चार्ज होता है. तो हमें कूलम्ब्स लॉ डेफिनेटली फॉर ए सिस्टम ऑफ चार्ज को अप्लाई करना है, तो वो हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे. इसके अलावा हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कॉन्सेप्ट. ओके, व्हाट डू वी मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ऑल दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो. Okay, so be careful and listen to the audio very carefully and watch the video very carefully as well. All right, so let's start. In this slide we will discuss Coulombs law for a system of charges. Coulombs law for a system of charges. जैसे कि हमने फॉर्मूला डिराइव किया था Coulombs law between two charges का, क्या था? F is equal to 1 over 4 pi epsilon naught Q1 Q2 over R square. इसका मतलब क्या था? The force of attraction or repulsion between two charges is directly proportional to the product of the magnitudes of the two charges and inversely proportional to the square of distance between their centers. ये हमने लास्ट क्लास पढ़ा था. अभी क्या होगा देखिए, अभी हम पढ़ेंगे Coulombs law for a system of charges. ओके, जैसे कि आप ये डायग्राम में देख पा रहे हो, I have taken a system of 3 charges. all right, see this, there are 3 charges Q1, Q2 and Q3. okay, and this one is the origin. all right, so we have to find out what is the force on charge Q1 due to these two charges Q2 and Q3. all right, आपको पता है फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है. ठीक है, तो जब हम दोनों का फोर्स जब यहाँ पे ऐड करेंगे तो we have to also take into account the vector concept. all right, जैसे कि हम इसको अलजेब्रिकली ऐड नहीं कर सकते क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें वेक्टर कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना पड़ेगा. ऑलराइट, सो आई विल कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ फोर्स, द टोटल फोर्स दैट एक्ट्स ऑन द चार्ज Q1 because of charge Q2 and charge Q3. Alright, so before we get into the diagram, let's first understand the concept. Alright, here I have given a heading superposition principle. Alright, superposition means when a number of charges act, when there are a lot of charges, then their forces, the force on a single charge will be the vector sum of the charges on it due to the forces on it due to all other charges. Okay, let's see the definition first. It states that when a number of charges are interacting, okay, for a system where there are a lot of charges, the total charge on a given charge, जैसे कि हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं चार्ज Q1 को, Q1 के ऊपर टोटल चार्ज कितना होगा, is the vector sum of the forces exerted on it due to all other charges. ठीक है, तो हम अगर Q1 के लिए कितना फोर्स हम अगर निकालना चाहें तो we have to take into account these two forces. okay, the force due to Q2 and the force due to Q3. The force between two charges is not affected by the presence of the other charges. This is an important line, you see. okay, the force between two charges is unaffected by the presence of other charges. okay, कोई तीसरा चार्ज होने की वजह से दो चार्ज के बीच का जो फोर्स है वो अफेक्टेड नहीं होता. राइट, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले we will consider n number of charges Q1, Q2 and up to Qn. These are n number of charges. ठीक है, we have placed them in vacuum. all right, with position vectors r on r2 and rn. all right, these are the respective position vectors. जैसे कि हमने यहाँ पे 3 चार्ज लिए हैं, तो the n will be 3. okay, the value of n will be 3 here.
then the total force Q1, the total force on the charge Q1 is given by how much? Vector F1 is equal to, or this vector F1 is the total force on the charge Q1 is equal to vector 1 2, okay, vector F13, vector F1n and so on. देखो इसका मतलब क्या है, let's decode this, F12 vector, इसका मतलब है the force on the first charge because of the second charge. Is that clear? Similarly, F13 vector means the force on the first charge because of the third charge. Similarly, F1n means the force on the first charge because of the nth charge. All right. So as these are vectors, we will add them in vector form. All right. जैसे कि हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो हमें वेक्टर लॉज का ध्यान रखना पड़ेगा. हमारे दो लॉज है, एक है ट्राइंगल लॉ, दूसरा है पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन, जो कि हम यहाँ पे यूज करेंगे. ऑलराइट, देखो अभी थोड़ा डायग्राम को ध्यान से देखो. ये है चार्ज Q1, इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई करता है Q2, वो फोर्स है F12, जैसे कि हमने यहाँ पे मेंशन किया है F12. और ठीक है, और इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस वेक्टर है वो है R12. Is that clear? So the force on Q1 will be obviously repulsive because both are positive charges. Okay, the repulsive force will go along this line, as it is a Coulombs force, the central force. It will act along the line joining the two charges. So this is F12. This is the force on the first charge because of the second charge. Similarly, F13. Look at the direction. Okay, F13 is the force on the first charge because of the third charge. So now see. Now there are two vectors, okay, F13 and F12. These two we have to add, and how they will be added? They will not be added algebraically. सिर्फ वो mathematically add नहीं होंगे, वो vectorially add होंगे. Vectorially add करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें parallelogram of vectors use करना पड़ेगा. जब हम parallelogram of vector use करेंगे तब क्या होगा? The resultant will go along the diagonal of the parallelogram, जैसे कि ये है. So this is the total force on the charge Q1, F1, and see its direction. All right, the direction is somewhat here. All right, so this is how the system of charge works. All right, अगर हम इसको थोड़ा mathematically और elaborate करेंगे तब क्या होगा? This will be सारे फोर्स में हमारा 1/4πε0 कॉमन है. ठीक है, so Q1 Q2, okay, the force between Q1 and Q2 divided by R12 square, and this is the unit vector R12, which is directed from charge Q1 to Q2. All right, similarly Q1 Q3 divided by R13 square, R13 is the unit vector directed from charge Q1 to charge Q3 and so on. ठीक है, इसको अगर हम थोड़ा कॉन्साइज करके लिखें, थोड़ा छोटा करके लिखें तो क्या होगा? 1/4πε0 summation of I is equal to, this is from I equal to 1 to n. All right, so this will be Q1 and QI. जहां भी आपका I है वहां पे आपको 1 पुट करके स्टार्ट करना है, सॉरी 2 पुट करके स्टार्ट करना है. ठीक है, जैसे कि आप सारे क्वांटिटीज में देख पा रहे हो, Q1 कॉमन है और R1 कॉमन है. ठीक है, और I को हम रिप्लेस करते हैं. पहले क्वांटिटी में 2 हम यूज किए, सेकंड क्वांटिटी में 3 यूज किए, ऐसे हम बढ़ाते जाएंगे. Is that clear? So this is what the superposition principle. What does it say? It says that the force on a single charge will be the vector sum of the forces on it due to all other charges. So this is what the Coulombs law for a system of charges. All right. Next we will see the concept of electric field or electric field intensity. The concept of electric field or electric field intensity, and it is a very important concept. All right, इसको थोड़ा literally पहले समझते हैं, उसके बाद हम फिजिक्स में जाएंगे. जनरली हम कभी कहते हैं कि कोई भी चीज का इफेक्ट कितने दूर तक होता है. ठीक है, जैसे कि हम बोलते हैं कि ये मेरा इलाका है या फिर वो उसका इलाका है, वहां मत जाओ, एक्सेट्रा लाइक दिस. ऑलराइट, so field means literally you can say the sphere of influence or the region of influence is called a field. All right, a field is a concept. All right, तो हम ये कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिसिटी में क्यों यूज करते हैं कि हम देखते हैं, जनरली ऑब्जर्व करते हैं कि कोई भी चार्ज के पास अगर दूसरा चार्ज ले आए
तो उसको अट्रैक्ट करता है या फिर रिपल करता है। तो कितने दूर तक ये पॉसिबल है? ये क्या पूरा इनफाइनाइट डिस्टेंस तक पॉसिबल है या फिर कोई फाइनाइट डिस्टेंस तक पॉसिबल है? तो जिस रीजन तक ये अट्रैक्शन और रिपल्सन पॉसिबल है उस रीजन को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑलराइट, इसको अभी थोड़ा डिटेल में समझेंगे हम इस स्लाइड में। ऑलराइट, so see, a field is a concept. Okay, there is no physical thing like field. Alright, it's a concept जो कि हम यूज करते हैं उसको समझने के लिए। ठीक है, किसको समझते हैं हम? कि to understand the electric field concept, the concept of electric field is used to understand the nature and the influence of Coulombs force. Okay, इस लाइन को थोड़ा समझो। What does it mean? मतलब हम देखेंगे अगर कोई भी चार्ज है, सपोज एक गिवन चार्ज है, उसके बहुत नजदीक अगर हम चले जाएं एक और चार्ज लेके, जैसे कि आप ये डायग्राम पे देखो, ये यहाँ पे एक चार्ज है हमारा Q। ऑलराइट, सपोज ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? द रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस। द रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस, इसके बाद मैं आपको डेफिनेशन भी बताऊंगा इसका। तो पहले इस डायग्राम को थोड़ा समझो। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा, इसके पास हम एक दूसरा चार्ज ले आए हैं Q नॉट। ये Q नॉट क्या है अभी इसी स्लाइड में हम एक्सप्लेन करेंगे। Q नॉट क्यों लिखा गया है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। ऑलराइट, तो जब तक ये इस रीजन में है, ठीक है, जब तक ये अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, तब तक इसके ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई हो सकता है। अगर ये ऑपोजिट है तो अट्रैक्ट होगा, अगर ये सेम है तो रिपल हो जाएगा। बट जब ये बाहर चले आएगा इस फील्ड से, इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा। इज दैट क्लियर? सिमिलरली फील्ड के अंदर भी इस पॉइंट में मैं अगर इसको रखता हूं, ये जितने फोर्स एक्सपीरियंस करता है, अगर मैं इसको चार्ज के पास ले आऊं, ठीक है, suppose यहाँ somewhere here, okay, if I'll put this same charge somewhere here, it will be attracted or repelled with a greater force। ठीक है, so depending on the points of the electric field, ठीक है, the electric force also varies। okay, तो ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स कितनी दूरी पे क्या होता है, इसको समझने के लिए हम फील्ड का इस्तेमाल करते हैं। ऑलराइट, समझ में आया कि मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे? कि अगर हम कोई भी चार्ज का कूलम्ब्स फोर्स को अगर हम समझना चाहें कि कितने दूरी पे उसका कूलम्ब्स फोर्स किस तरह एक्ट करता है, उसको समझने के लिए हमें फील्ड का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। ठीक है, so we'll go to the definition now। all right, electric field concept is used to understand the nature, action at distance। एक्शन एट डिस्टेंस, जैसे कि हमें पता है कि कूलम्ब्स फोर्स डिपेंड करता है डिस्टेंस के ऊपर। ओके, इट इज इनवर्स स्क्वायर फॉर्मूला, k q1 q2 over r square। okay, so qualitatively the region surrounding a charge in which the electrical influence of a charge is realized is known as electric field। electrical influence means whether attraction or repulsion। ठीक है, so long as the region in which it is felt, it is realized, that region is called your electric field, and it is the qualitative definition। okay, that is the physical meaning of that, but we will now understand it mathematically। all right, तो अगर हमें पता करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं, या फिर कूलम्ब्स फोर्स यहाँ पे एक्ट करता है या नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा? अगर ये चार्ज का हमें पता करना है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं, और या इसका इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस है या नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसके पास हमें एक और चार्ज लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो जो चार्ज हम लेके जाएंगे उसको कहते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज और टेस्ट चार्ज। इसको टेस्ट चार्ज क्यों कहते हैं? क्योंकि हम इसको यूज करते हैं टेस्ट करने के लिए। क्या टेस्ट करने के लिए? कि इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं, वो टेस्ट करने के लिए। ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ टेस्ट चार्ज, एंड इट हैज टू बी वेरी स्मॉल, एंड इट हैज टू बी वेरी स्मॉल। ये बहुत छोटा होना पड़ेगा। क्यों छोटा होना पड़ेगा? अगर हम उसको छोटा नहीं लेंगे तब क्या करेगा, ये इसका जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसको अफेक्ट कर देगा, डिस्टर्ब कर देगा। पहले हमारा जितना चार्ज है ये उसको डिस्टर्ब कर देगा। ठीक है, मे बी ये उसको रिपेल कर सकता है या फिर अट्रैक्ट कर सकता है। तो ये उसका जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसको डिस्टर्ब कर देगा। इसलिए हमें क्या करना है, हम जो टेस्ट करने के लिए जो चार्ज ले रहे हैं हम उसको बहुत छोटा लेना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? सो दैट इज व्हाई इट इज अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो जब हम ये चार्ज को लेके जाते हैं, उसके ऊपर कितना फोर्स अप्लाई होता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो
To test the presence of electric field at any point, we'll use a small positive charge Q naught, called the unit positive charge or test charge. If it experiences a force of if it experiences a force F, all right, F at a point P inside the electric field, then the electric field at that point is given by vector E. Remember, electric field is a vector quantity. Vector E is equal to F, vector F. This is Coulombs force over Q naught, okay, or the Coulombs force per unit positive charge at a given point is called the electric field at that point. Okay, and from the definition you can also understand that ये जो वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कह सकते हैं, ये डिफरेंट पॉइंट्स में डिफरेंट होता है. क्यों डिफरेंट होता है? क्योंकि डिफरेंट पॉइंट्स में फोर्स भी डिफरेंट होता है. ठीक है, फोर्स क्यों डिफरेंट होता है? क्योंकि डिफरेंट पॉइंट्स में जो सेंटर्स के बीच जो दूरी होता है, जो डिस्टेंस होता है, वो अलग अलग होता है, इसलिए फोर्स भी अलग होगा. अगर फोर्स अलग होगा तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड भी अलग होगा. ठीक है, सो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है. ठीक है, इसको यहाँ के लिए सपोज मैं एक 10 कूलम का चार्ज लेके आऊंगा. सपोज इसके ऊपर 100 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो पर यूनिट चार्ज कितना फोर्स अप्लाई होगा? 100 डिवाइडेड बाय 10, सो 10. ये जो 10 आया वो 10 यूनिट को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट. इज दैट क्लियर? सो ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट. इसके बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ते हैं आगे. नेक्स्ट, ओके, हाँ, वही मैंने जो पहले आपको डिस्कस किया था उसी को थोड़ा और इलाबोरेट करेंगे यहाँ पे. ठीक है, we shall choose the test charge very small. We shall use the test charge very small so that it will not disturb the charge distribution of the source charge. So we may now define electric field as vector E is equal to limit Q naught tends to 0. What does it mean? इसका फिजिकल मीनिंग होता है कि Q naught हमें बहुत छोटा लेना है, infinitely small. All right, and vector F over Q naught. So this is the mathematical formula of electric field. और electric field intensity भी हम इसको कह सकते हैं. Okay, and this point is very important. Electric field is a point function. What is a point function? A point function means if a quantity has different values at different points, then it is called a point function. Electric field, electric potential, okay, all these quantities are point functions. Different points में इनका वैल्यू डिफरेंट होता है, इसलिए इनको कहते हैं पॉइंट फंक्शन. और जब वेक्टर होता है हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं. इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, चार्ज से हम कितनी दूरी पे है उसके ऊपर डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड. ऑलराइट, it means at different points inside the electric field the values of electric field are different. Obviously it is a vector field. जैसे कि मैंने पहले ही कहा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज a vector quantity. क्यों वेक्टर क्वांटिटी है? क्योंकि इसके फॉर्मूला में फोर्स है. एज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ऑब्वियसली दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी. एट डिफरेंट पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ फील्ड आर डिफरेंट. अगर वेक्टर क्वांटिटी है ऑब्वियसली उसका डायरेक्शन होगा. अगर डिफरेंट पॉइंट्स में इसका डिफरेंट वेक्टर्स है, सो ऑब्वियसली डायरेक्शन भी अलग अलग होगा. We can find the amount of Coulombs force F from the value of electric field at a given point. अच्छा, अगर हमें फोर्स गिवन है और चार्ज गिवन है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर सकते हैं फ्रॉम दिस फॉर्मूला E is equal to F by Q naught. तो अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है एक पॉइंट में, तो हम उस पॉइंट में कितना कूलम्स फोर्स अप्लाई हो रहा है वो भी हम निकाल सकते हैं. ठीक है, दिस इज व्हाट दिस पॉइंट इज. We can find out the amount of Coulombs force F from the value of electric field at a given point as E is equal to F over Q naught. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये है. सो F इज इक्वल टू क्या होगा? ऑब्वियसली E टाइम्स Q naught और Q naught टाइम्स E. ऑलराइट, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं इसके बेसिस पे. ठीक है, ये फॉर्मूला थोड़ा ध्यान से हमें देखना पड़ेगा. यूनिट क्या होगा इसका? ऑब्वियसली फोर्स का है न्यूटन, चार्ज का है कूलम्स और न्यूटन पर कूलम. और एक और यूनिट है जो कि हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, दिस इज वोल्ट पर मीटर. ऑलराइट, देन डायमेंशंस. okay, this is the dimension of force, this is the dimension of charge, A into T. Alright, so M L T minus 3 A minus 1. This is all about your electric. Okay, now we'll see what is the value of electric field due to a point charge.
ओके, एक सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो अभी हम डिराइव करेंगे. ऑलराइट, so for that we have to consider a source charge. ओके, Q, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो आप, ये है हमारा सोर्स चार्ज. इसी का हम इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करेंगे एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम दिस चार्ज. ऑलराइट, तो उस मेजर करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, जैसे कि हमने पहले स्लाइड में हम डिस्कस भी किए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक टेस्ट चार्ज लेते हैं. ओके, फिर टेस्ट चार्ज को क्या करते हैं, वो टेस्ट चार्ज के ऊपर कितना कूलम्स फोर्स अप्लाई होता है वो हम देखते हैं, फिर हमें पता चलता है इलेक्ट्रिक फील्ड. सेम थिंग वी विल आल्सो डू हियर. ऑलराइट, सो कंसीडर ए पॉइंट चार्ज Q. ऑलराइट, जिसको हम सोर्स चार्ज कहते हैं. Consider a point P. All right, this one is point P. I have forgotten to write here. All right, where we want to measure the electric field at a distance r from the charge. Okay, to do this we have to place a test charge Q at a point P. All right, तो हमने एक test charge ले लिया. तो as the charges are positive, it will the force will be repulsive along this line as it is a central force. So according to Coulombs law, the force on the charge Q naught is given by how much? Vector F is equal to 1 over 4 pi epsilon naught Q naught divided by R square and a unit vector R. What does it mean? Where the unit vector R is the unit vector in the direction from Q to Q naught. Okay, इसका direction जो है from Q to Q naught है. Okay, so ये हो गया हमारा Coulombs force. और इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन क्या है, द कूलम्स फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, ऑब्वियसली. सो E इज इक्वल टू F divided by Q naught. So Q naught will be cancelling here. So how much we are left with? We are left with 1 over 4 pi epsilon naught Q over R square and R cap. All right, so this is the value of electric field at a given point at a distance R from a given charge. All right, अगर हम इसको मैग्नीट्यूड देखते हैं तो क्या आता है, E is equal to 1 over 4 pi epsilon naught Q over R square. Okay, so look at this formula carefully. The first quantity, 1 over 4 pi epsilon naught is a constant, and for a given charge Q is also constant. ठीक है, तो ये सब quantity constant है, तो what only varies? R. Okay, R square. So clearly E is proportional to 1 over R square. Okay, or we may say that it varies inversely as the square of distance. Okay, इसका मतलब क्या है, distance जैसे हम बढ़ाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू घटता जाएगा. इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू घटता जाएगा मतलब क्या है, कूलम्स फोर्स रिड्यूस होता जाएगा. ओके, सो दैट मीन्स जब हम एक चार्ज से बहुत दूर चले जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और द रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस और द इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस रिड्यूसेस. धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड घटता जाता है. ठीक है, एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द सोर्स चार्ज, नॉट ऑन द टेस्ट चार्ज. ठीक है, टेस्ट चार्ज आप कितना भी ले जाओ, ठीक है, 5 कूलम ले जाओ, 6 कूलम ले जाओ, जो भी ले जाओ, ठीक है, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर. ठीक है, सो इट डज नॉट डिपेंड ऑन Q naught but only depends on the source charge. ठीक है, so this is due to a point charge, how much electric field at a given distance due to a point charge. Okay, now we'll see the electric field due to a system of charges. जैसे कि पहले Coulombs force हमने पहले डिराइव किया दो पॉइंट चार्जेस के बीच, फिर हमने Coulombs law डिराइव किया फॉर a system of charges. Similarly पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव किया फॉर a सिंगल पॉइंट चार्ज. अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस करेंगे ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस, जिसको हम कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. ऑलराइट, तो पहले ये डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद हम इसको समझेंगे डिटेल में. ओके, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ चार्जेस इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द इलेक्ट्रिकल फील्ड्स प्रोड्यूस्ड बाय ऑल चार्जेस एट दैट पॉइंट individually when other charges are assumed to be absent. Mathematically, E is equal to E1 plus E2 and so on. All right, what does it mean? Okay, consider n number of charges. Okay, here in this diagram we have considered 3 charges. हमने यहाँ पे 3 चार्ज लिए हैं. ठीक है, हमें क्या करना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है ड्यू टू ऑल दिस 3 चार्जेस एट पॉइंट P. ठीक है, दिस इज पॉइंट P.
इस पॉइंट में हमें इन तीनों चार्ज के वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो हमें निकालना है। ठीक है, हम कैसे निकालेंगे इसको? वी हैव टू टेक इनटू अकाउंट द वेक्टर कंसीडरेशन, वेक्टर कॉन्सेप्ट वी हैव टू यूज हियर। ऑलराइट, कैसे यूज करेंगे देखो इसको थोड़ा। तो कंसिडर द फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज Q1, इट इज, इसका डायरेक्शन कैसा है? E1P, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू द फर्स्ट चार्ज, और इसका डायरेक्शन कैसा है? along this line, is it? Similarly E2P, इसका क्या है? द इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू द सेकंड चार्ज, और इसका डायरेक्शन है दिस वन, टुवर्ड्स द ईस्ट। सिमिलरली Q3 क्या है? E3 है, E3P है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द थर्ड चार्ज एट P। ऑलराइट, सो दिस इज अलोंग दिस डायरेक्शन। तो तीनों का डायरेक्शन अलग अलग है, स्टिल हमें क्या करना है कि एक वेक्टर, इनका रिजल्टेंट वेक्टर कितना है वो हमको डिराइव करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? वी विल यूज ए वेक्टर मेथड कॉल्ड पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर्स हियर। पॉलीगन लॉ क्या कहता है कि हम देखो यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो इसका एक पैरेलल वेक्टर हम यहाँ पे ले जाते हैं E2P, ठीक है, इसका पैरेलल वेक्टर है तो हमें कोई नुकसान नहीं है इसे लेने में। सिमिलरली इसका एक पैरेलल वेक्टर ले जाते हैं E3P, ठीक है। नाउ दिस E1P, E2P एंड E3P, दे मेक द थ्री साइड्स ऑफ ए क्लोज्ड पॉलीगन, ठीक है, और दे आर इन द सेम ऑर्डर। जैसे ये पॉलीगन लॉ वेक्टर्स कहता है, इफ डिफरेंट वेक्टर्स आर डायरेक्टेड अलोंग द all sides of a polygon in same order, then the resultant is directed along the closed side of the polygon। ये है polygon law vector। तो ये हमारा closed side है, ठीक है। so this is the resultant field at P, ठीक है। तीनों हमें पहले इनिशियली था 3 वेक्टर, इन तीनों को हमने मिला दिया। कैसे मिलाया? वेक्टर लॉ अप्लाई करके, तो हमें एक डायरेक्शन अभी मिल गया। दिस इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। Alright, so this is what the superposition principle says, ठीक है। तो हमने n number of charge लिए थे, इस एग्जांपल में 3 लिए थे। Alright, and these are the position vectors। Alright, so now we have added them vectorially। Okay, vector E is equal to vector E1 plus vector E2 plus vector En। What are the, what do they say? E1 is equal to the field at P due to charge Q1, E2 is equal to the field at P due to charge Q2, and En is equal to the field at P due to charge N, Qn। Alright, so 1 by 4 pi epsilon naught is common in all the terms। Alright, so we can take it common, okay, in bracket Q1 R1 P square। What does it mean? इसको थोड़ा समझो, एक टर्म हम समझेंगे। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है 1 by 4 pi epsilon naught Q divided by R square। So this is the electric field at P due to the charge Q1। So Q1 over R1P, R1P is the vector directed from the charge Q1 to P। Alright, R1P square, so this is the unit vector directed from the charge Q1 to P। Similarly this one Q2 R2 square, this is for the second charge and this is for the nth charge। यहाँ पे थर्ड चार्ज होगा जी, एज हमने 3 चार्ज। Okay, so in this video we have discussed a lot of things about electric field due to a point charge, due to a system of charges, its physical significance, and all that we have discussed today in this video। Alright, in the coming videos we will solve some of its numericals related to electric field। ठीक है, आगे हम इसके रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ऑलराइट, आगे पढ़ेंगे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ऑलराइट, थैंक यू।